Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 5, that is separation of substances. Students, in the last class we have discussed about various types of separation techniques, like we have studied about evaporation, condensation, sieving, etc. Today we will start with a new topic, that is can water dissolve any amount of a substance? क्या पानी हर एक अमाउंट जो होती है किसी भी सब्सटेंस की उसको डिसॉल्व कर सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस टॉपिक से निकालेंगे. In the previous chapter we found that many substances dissolve in water. We have studied that many of the substances dissolve in water, like we have gas, like we have solids, and we have other types of liquids also, right? We say that these substances are soluble in water. If any substance dissolves in water, then we say that that substance is soluble in nature, right? And if any substance doesn't dissolve in water, we say that it is insoluble in water. So we categorize substances into two categories depending upon whether it is soluble in water or not soluble in water. If it is soluble, then we say that it is soluble in water. If it is not soluble in water, then we say it as insoluble in nature. Now, the amount of a substance that dissolves in water is different in different types of substances. Like if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water, what will happen? You must have seen your mother dissolving sugar in water, right? She keeps on adding sugar in water and sugar dissolves in water. But a stage comes when on further adding of sugar, the sugar doesn't dissolve in water. In that stage, the water or the solution is termed as saturated solution. At that point, the solution is known as saturated solution. तो saturated solution क्या हुआ कि जब हम लोग शुगर को पानी में डालते हैं तो शुगर डिसॉल्व हो जाती है. हम और शुगर डालते हैं तब भी पानी में शुगर डिसॉल्व हो जाती है. लेकिन धीरे धीरे बार बार शुगर ऐड करने पर एक ऐसी स्टेज आती है जब शुगर जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती है. उस स्टेज पर हम पानी को क्या बोलते हैं या सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं कि वो सैचुरेट हो चुका है, यानी कि अब भर चुका है. उसके पानी के अंदर जो स्पेसेस हैं they are filled by sugar and there are no more spaces left. ठीक है, इसीलिए हम उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. लेकिन वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आप शुगर को डालते जा रहे हैं और शुगर पानी में डिसॉल्व होती जा रही है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर अभी भी थोड़ी थोड़ी स्पेसेस बाकी हैं जहां पर शुगर आकर बैठ सकती है. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन जहां कोई स्पेस नहीं बचती दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के बीच में, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इसके लिए जो मैंने एक्टिविटी आपको बताई है वही एक्टिविटी यहाँ पर आपको गिवन है. यू विल नीड अ बीकर फॉर दैट एंड अ स्मॉल पैन, स्पून, सॉल्ट एंड वाटर, राइट, एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर. आपने बीकर में क्या क्या चीजें ली हैं? पानी लिया है, आधा इसको पानी से भर लिया है. इसके अंदर 1 टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट डाला है. आपने उसको घुमाया है. सॉल्ट जो होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा. फिर आप इसके अंदर फिर से 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालेंगे और वो भी क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. ऑन फर्दर एडिंग ऑफ सॉल्ट इट ऑल्सो डिसॉल्व्स, और सॉल्ट जो रहेगा नीचे आपको कहीं भी दिखाई भी नहीं देगा. बट एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप पानी के अंदर सॉल्ट को और डालेंगे तो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा एंड इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. At that stage the solution is termed as saturated, यानी कि भर गया है. अब वो उसके अंदर कोई स्पेस नहीं है सॉल्ट के लिए या किसी दूसरे सॉलिड सब्सटेंस के लिए, राइट. एट दैट स्टेज हम लोग सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड. तो इस तरह से हम लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को पढ़ा. देन एक और एक्टिविटी गिवन है. टेक 2 glasses of water, pour half a cup of water in each of them and add a teaspoon full of salt to 1 glass and stir it till the salt dissolves. Go on adding salt 1 teaspoon at a time. The salt solution dissolves in it and it will become saturated in nature. तो आप बार बार ये एक्टिविटी जब रिपीट करेंगे तो वही बात है, फिर से एक ऐसी स्टेज आएगी जब सॉल्ट और शुगर जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाते हैं. तो इस तरह से हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा. एक एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं. एक बीकर लेंगे जिसके अंदर आप आधा ग्लास पानी डालेंगे, उसके अंदर आप सॉल्ट डालेंगे. सॉल्ट डालते जाएंगे एक ऐसी स्टेज आएगी जब सॉल्ट डिसॉल्व नहीं करेगा. तो आप ये देखेंगे कि आपने कितने स्पून ऑफ सॉल्ट डाले उस हाफ ग्लास ऑफ वाटर में.
और सिमिलरली यही एक्टिविटी आप शुगर के साथ परफॉर्म करेंगे कि कितनी टीस्पूनफुल ऑफ आपने शुगर डाली है और हाफ ग्लास ऑफ वाटर में, जब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है, राइट। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के अंदर अलग अलग तरीके की सेपरेशन टेक्निक्स देखी हैं, जिसमें सीविंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एक्सेट्रा टेक्निक्स हमारी आती हैं। तो बहुत सारे इसमें मेथड्स हम लोगों ने पढ़े, हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सेडिमेंटेशन भी पढ़ा, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये सभी की डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। देन हस्क और स्टोन्स जो रहते हैं, दे कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। अगर हमारा जो दो सब्सटेंसेस जो आपस में मिक्स हो गए हैं, उसमें दोनों ही अलग अलग साइज के हैं और दोनों हमें इजीली विजिबल हो रहे हैं, तो हम लोग जो बड़े साइज का पार्टिकल है उसको इजीली हम लोग हैंड पिक करके उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। और हस्क जो होता है, अगर हमें गेहूं में से या दूसरे हमारे ग्रेन्स में से हस्क को अलग करना है, तो टेक्निक विच इज बीइंग यूज्ड इज विनोइंग। उसको हम क्या बोलते हैं? विनोइंग बोलते हैं। तो अगर हम सैंड और वाटर का मिक्सचर देखते हैं, तो हेवियर पार्टिकल्स जो होते हैं सैंड के, दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम, क्लियर वाटर विल रिमेन at the upper side and we can separate it with the help of decantation technique. Filtration भी यूज करते हैं because sedimentation और decantation से जो water हमें मिलता है that is not suitable for consumption, that is not fit for drinking. It has to be cleared with the help of filtration. तो हम उसका filtration करते हैं, जिसमें से insoluble particles जो होते हैं हमारे liquid में से अलग हो जाते हैं. Then we will do evaporation. Evaporation में हम किसी solid particle को liquid से अलग कर सकते हैं. Like if salt is dissolved in water and we want to separate the salt from the water, then we will use the evaporation technique. Water will evaporate due to heat and salt will stick to the bottom and we can separate it out with suitable technique. Then we have seen that we have categorized substances into soluble and insoluble depending upon they dissolve in water and not. Then we have seen the saturated solutions and the unsaturated solutions. So your chapter, that is chapter number 5, is over now. Coming to the question answers part. First is, why do we need two separate? यहाँ पर आपका misprint है, थोड़ा सा इसको correction कीजिए. Why do we need two separate different components of a mixture? Why there is a need to separate different components of a mixture? Give two examples. We need to separate out two different components in a mixture if we want to use them separately. अगर हमें उनको separately use करना है तो हमें उनको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सी वाटर का. सी वाटर इज सॉल्टी इन नेचर, ठीक है. सी वाटर क्या होता है? सॉल्टी नेचर का होता है और हमें उस सी वाटर में से सॉल्ट को अलग करना है. तो सी वाटर में सॉल्ट प्लस वाटर है, दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों कंपोनेंट्स ने मिलकर क्या बनाया हुआ है? एक मिक्सचर बनाया हुआ है. एंड वी सेपरेट आउट सॉल्ट फ्रॉम इट. तो we will use which technique? We will use evaporation, ठीक है. evaporation technique use करेंगे. Similarly ये तो salt and water का था. If we want to get pure water from the muddy water, then which technique we are going to use? We will use two techniques, ठीक है. What are those techniques? तो first is sedimentation और उसके बाद हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? सेडिमेंटेशन के बाद decantation. और तब भी पानी जो होता है that is not fit for consumption, we have to use filtration technique also. तो एक ही कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग तीन टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं. तो दो एग्जांपल कौन से हुए? आप लिख सकते हैं सॉल्ट फ्रॉम वाटर. सेकेंड इज, ये तो पहला है. दूसरा कौन सा होगा? ये तो सॉल्ट फ्रॉम वाटर है. सेकेंड है आपका वाटर फ्रॉम, आप कह सकते हो किससे? वाटर फ्रॉम मडी वाटर. यहां लिखिए क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर, ठीक है. तो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ द मिक्सचर्स. व्हाट इज विनोइंग? वेयर इट इज यूज्ड? विनोइंग क्या होता है? विनोइंग की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर गिवन है, देखें. विनोइंग, ये रही विनोइंग की डेफिनेशन. तो ये कौन सा है आपका? आंसर नंबर 2 है. दिस इज आंसर नंबर 2.
कौन सा है ये शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर 2 नोट कर लीजिए फटाफट इसे। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। आपको सैंपल दिया गया है पल्सेस का, उसके अंदर से आपको हस्क या डर्ट पार्टिकल्स को अलग करना है। विच टेक्निक विल यू यूज? आप क्या करेंगे, जो पल्सेस हैं उनको क्या करेंगे, पानी में सोक करके रख देंगे। सोकिंग टेक्निक आप इसमें यूज करेंगे, जिससे सोक करने से क्या होगा, पल्सेस जो होंगे बीइंग हेवी इन नेचर दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, whereas the husk or the dirt particles being lighter in nature they will float on the surface of the water and which you can separate out, right? उस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं सोकिंग को। देन व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड? सीविंग क्या होता है? सीविंग से हम लोग दो सॉलिड पार्टिकल्स जो कि अलग अलग साइजेस के होते हैं उनको अलग करते हैं। जैसे कि हमें फ्लोर से हस्क या ब्रान को अलग करना है तो हम लोग सीविंग टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। तो सीविंग टेक्निक यूज करके दो सॉलिड पार्टिकल्स विच आर ऑफ डिफरेंट साइजेस वी कैन सेपरेट। वेयर इज इट यूज्ड? इट इज यूज्ड कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग सीविंग? फ्लोर FLOUR टू सेपरेट ब्रान, यहां पर यूज करते हैं BRAN, यहां पर यूज करते हैं। दूसरा हम कहाँ यूज करते हैं? टू सेपरेट पेबल्स फ्रॉम सैंड विच इज बीइंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग सैंड यूज करते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, तो उन्हें अगर हमें सेपरेट करना होता है तो विच टेक्निक वी यूज सीविंग, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट आता है हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब सैंड और वाटर को हमें उसके मिक्सचर से सेपरेट आउट करना है, तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? तो इसके अंदर दो टेक्निक्स यूज होंगी। सबसे पहले तो है सेडिमेंटेशन। सबसे पहले क्या यूज करेंगे आप? सेडिमेंटेशन यूज करेंगे, यानी कि वो सैंपल लेंगे जिसके अंदर सॉल्ट वाटर और सैंड आपस में मिक्स हो गए हैं, उसको क्या करेंगे, एक बीकर में लेंगे और उसको काफी देर तक 2-3 घंटे तक अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे। अनडिस्टर्ब्ड छोड़ने के बाद क्या होगा, सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम, वाटर विल फ्लोट, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, डीकेंटेशन से पानी को अलग कर लेंगे। क्या करेंगे? डीकेंटेशन से पानी को अलग कर लेंगे। और अगर यही पानी आपको पीने के लिए यूज करना है तो वी विल हैव टू यूज फिल्ट्रेशन टेक्निक सब्सिक्वेंटली, राइट। फिल्ट्रेशन टेक्निक भी हमें यूज करनी पड़ेगी इसके बाद। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर? क्या हम लोग शुगर जो होती है जो कि व्हीट फ्लोर के साथ मिक्स्ड है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं? यस, क्योंकि हमने सीविंग टेक्निक में देखा है। किस टेक्निक को यूज करेंगे हम लोग? सीविंग यूज करेंगे, क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं कंपैरेटिवली बड़े साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लोर। तो जब हम छानेंगे छलनी से, फ्लोर विल कम आउट इन द सेपरेट कंटेनर और जो शुगर के जो पार्टिकल्स है दे विल रिमेन इन द सीव, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लीन वाटर फ्रॉम द सैंपल ऑफ मडी वाटर? ये वही वाली टेक्निक आ गई। इसके अंदर आप सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन की टेक्निक को और उसके बाद आप फिल्ट्रेशन भी यूज करेंगे। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा इसके अंदर फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। देन फिलअप्स आते हैं। कमिंग टू द फिलअप्स पार्ट, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशिंग, क्योंकि हमें उसकी स्टॉक से अलग करना है तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। व्हेन मिल्क cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream or the malai is left behind on it. This process of separating cream from the milk is an example of, cream को जब हम लोग milk से separate out करते हैं तो ये किसका example होता है? ये आप अपने आप लिखेंगे चैप्टर को पढ़ के इसका आंसर, ठीक है। Salt is obtained from sea water by the process of, इसको भी मैंने बताया अभी आपको। कौन सी टेक्निक इसको आप यूज करेंगे? इसके अंदर आप यूज करेंगे इवेपोरेशन, ठीक है। देन और क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इम्प्योरिटीज settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. This process of separation used in this example is, ये किसका example है?
ये एग्जाम्पल है सेडिमेंटेशन का। Then state whether the statements given below are true or false. A mixture of milk and water can be separated by filtration. क्या मिल्क और वाटर को आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं? फॉल्स, नहीं कर सकते। ठीक है। A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. क्या salt और sugar का जो powdered form है उसको हम winnowing से separate out कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पाउडर के फॉर्म में हो जाएंगे। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन। अगर आपको शुगर को सेपरेट आउट करना है फिल्ट्रेशन से, तो आप शुगर को सेपरेट आउट कर सकते हो टी से? नहीं कर सकते हैं। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। नो, सभी फॉल्स हैं। देन सजेस्टेड प्रोजेक्ट एक्टिविटी, ये आपको नहीं करनी है। कमिंग टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज हैंड पिक, व्हेन इज हैंड पिकिंग यूज? हैंड पिकिंग हम कब करते हैं? जब दो मिक्सचर यानी कि दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो गए हों और उनमें से एक सब्सटेंस जो है कंपैरेटिवली बड़े साइज का हो, दोनों सब्सटेंसेस का ही साइज एक्चुअली में डिफरेंट हो, तो हम इजीली उसको देखकर उसकी हैंड पिकिंग कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेन से गेहूं में जो है पत्थर छोटे छोटे मिक्स हो गए हों, तो हम क्या करेंगे, गेहूं और पत्थर दोनों अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं, तो हम इजीली आंखों से देखकर उसको हैंड पिक कर सकते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, मैंने अंडरलाइन भी करवाई थी, आप उसको वहां से देख सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, दिस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। डेफिनेशन में लिख देती हूँ इसकी। The process by which water gets converted into water vapor. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। गिव द डेफिनेशन ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की डेफिनेशन में यहां लिख रही हूं, द प्रोसेस बाय विच वेपर्स gets converted into liquid. Into liquids. This technique is known as condensation. इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या तो जल्दी से, या फिर इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ऑन व्हाट बेसिस विल यू चूज अ मेथड ऑफ सेपरेशन? किस बेसिस पर आप सेपरेशन की टेक्निक यूज करेंगे? हम सेपरेशन की टेक्निक या मेथड हम उस केसेस में यूज करते हैं जब दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो गए हैं। ठीक है, जब दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो गए हैं तब हम सेपरेशन की टेक्निक को यूज करते हैं। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड व्हीट फ्लोर? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, आंसर मैंने आपको पहले बता दिया है। विच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग? सीविंग से कौन कौन से हम लोग सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है कि जब दो सब्सटेंसेस जो कि आपस में मिक्स हो गए हों, दोनों अलग अलग साइज के हों, इनमें एक छोटे साइज का होना चाहिए और एक बड़े साइज का होना चाहिए। तो छोटे साइज का होगा वो सीव से यानी कि छलनी से निकलकर नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो बड़े साइज का होगा वो सीव के ऊपर ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम दो सब्सटेंसेस को आपस में से सेपरेट कर सकते हैं। हाउ विल यू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम पल्सेस और ग्रेन्स बिफोर कुकिंग? ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड व्हीट फ्लोर? फिर से रिपीट हुआ है, ये यहाँ भी रिपीट हुआ है और पहले भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग? थ्रेशिंग और विनोइंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है? थ्रेशिंग का मतलब होता है टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग होता है टू सेपरेट आउट ग्रेन फ्रॉम द हस्क, उसको हम क्या बोलते हैं? विनोइंग बोलते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन यानी कि द प्रोसेस बाय विच द हेवी पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द bottom of the container whereas the lighter particles will float on the top of the container. Decantation क्या होता है? जिस भी मटेरियल को हमने सेपरेट आउट किया है सेडिमेंटेशन की टेक्निक से, उसको किसी दूसरे बीकर में कलेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। इसकी डेफिनेशन गिवन है।
इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की डेफिनेशन मैंने आपको अभी लिखवाई है। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स, फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। हाउ इज विनोइंग यूजफुल टू फार्मर्स, विनोइंग फार्मर्स के लिए यूजफुल कैसे है? विनोइंग इस तरह से यूजफुल है क्योंकि फार्मर्स को जब ग्रेन चाहिए होता है तो ग्रेन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं, जैसे हस्क हो जाता है, स्ट्रॉ हो जाता है, एंड उसको सेपरेट आउट करना जरूरी होता है। तो विनोइंग की टेक्निक से जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, दे कैन सेपरेट आउट देयर ग्रेन्स और देयर सीड्स फ्रॉम हस्क और द स्ट्रॉ, राइट। तो उससे विनोइंग से करते क्या है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ उड़कर नीचे की तरफ आ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं। तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो ठीक नीचे की तरफ आकर गिरेंगे और उनको फार्मर्स जो हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं। हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर, बार बार ये क्वेश्चन आया जा रहा है, मैंने आपको करवा दिया है इसको बार बार आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग, एक मिक्सचर है सैंड और वाटर का, उसको आपको सेपरेट करना है तो क्या यूज करोगे, सेडिमेंटेशन। आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन बाय, ये आपके नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, लेकिन आप उसके अंदर मैग्नेट्स का यूज करते हो। इन समर द पॉन्ड ड्राइज अप बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन से। जल्दी से नोट कीजिए। देन द मेथड यूज फॉर रिमूविंग पल्प फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस, जो मेथड हम लोग यूज करते हैं पल्प को सेपरेट आउट करने के लिए फ्रेश फ्रूट जूस से, तो आप क्या कर सकते हो, सेडिमेंटेशन टेक्निक यूज कर सकते हो यहाँ पर। देन मैचअप्स हैं, मैचअप्स में सीविंग जो है उसको किसके साथ मैच करेंगे, सीविंग को सेपरेट करना है, सीविंग को किसके साथ यूज करेंगे आप, सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ स्टोन्स एंड सैंड, ये वाला यूज करेंगे, तो ए को इसके साथ आप मैच करेंगे। इवेपोरेशन यूज करना है आपको, एक्सट्रैक्टिंग सी सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, ये बी आ जाएगा आपका। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग होता है आपका इसको अलग करना, ग्रेन्स एंड स्टॉक्स को अलग करना, सी। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग क्या होती है, सेपरेशन ऑफ पल्सेस एंड स्टोन्स, डी। कंडेंसेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, यस, ई। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग होता है सेपरेशन ऑफ हस्क एंड ग्रेन्स, एफ। और लास्ट में फिल्ट्रेशन आता है, सेपरेशन ऑफ मड एंड फ्रॉम द मडी वाटर, जी। इसको जल्दी से नोट कीजिए। देन आता है फिलअप्स, डैश मींस कटिंग द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड, इसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग, क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। During dash, solid particles that settle down forming a layer are called sedimentation. During sediment, इसको हम sedimentation बोलते हैं, sedimentation. Dash particles are lighter than grains. Husk particles जो होते हैं, they are lighter than grains. Dash is used to remove the dash from the fresh fruit juice. Pulp को हम लोग remove करते हैं. Pulp is used to remove the juice from the fresh fruit juice. Pulp को remove करते हैं. The method used to remove grains from their stalks is called, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम बोलते हैं threshing, THRESHING. The process by which vapor change into liquid state, इसको हम क्या बोलते हैं, condensation. Salt is obtained from sea water by the process of evaporation. The process of allowing muddy water to stand so that mud settles down at the bottom of the container is called sedimentation. Then a mixture of sugar and water can be separated by hand picking. Sugar और water को hand pick से कर सकते हैं, नहीं. Sieving is a method used for separating components of a mixture which are of different sizes, yes. During sedimentation, lighter particles settle down forming sediments, yes. Lighter particles settle नहीं होते, cross, false. Filtration is the method which is used for making paneer, ठीक है, बिल्कुल. A liquid can be converted into its vapor form by the process of decantation, no, false. तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अब ओवर होते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे. थैंक यू.